So, hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about the UP Sainik School exam class 6th portion English. Okay, so बच्चे, as you know that UP Sainik में हमें 50 questions मिलते हैं, right? बहुत इजी पेपर था. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हमें 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिले हैं इस पेपर में. फर्स्ट 4 जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. सो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रूड मैन कॉल गौतम बुद्धा? क्या कहा था? अ फेक पर्सन, अ वाइज पर्सन, अ डिवोटी और एन एंग्री पर्सन. नेक्स्ट, what do you understand by the rude man kept listening to him with his wide open mouth? So इसका options हमें given है. He wanted to eat something, या he was getting bored with his examples, he wanted to shout on him, or he was surprised with his word. Next, what can replace to get rid of? कोई ऐसा word जो इसको replace कर सके. तो enhance, get involved into, disburden, get identification. Next, 4. What is the education of Gautam Buddha to the mankind? क्या उनकी एजुकेशन, क्या हो उनके जो था जो बताया उन्होंने. ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. बिहेविंग बैडली स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, या वी शुड स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव, बिहेव बैडली, happiness and love can lead to anger and bad behavior, या none of these. So for answering we need to read the passage. So let's start the passage. हमारे पैसेज में क्या है? One day a good man came to Gautam Buddha and started shouting at him, "You have no right teaching other." He wanted to insult him more, so he kept shouting, "You are a fake person, and everyone who is following you is a fake." Gautam Buddha listened to him very carefully, but he didn't get angry. He called that person near to him and said, "Dear, tell me one thing. If you bought a gift for a friend and he denies accepting the gift, in this situation, to whom does this gift belong?" The rude man was surprised to be asked such polite question all of a sudden, but he said, "Definitely, it would belongs to me as I have bought that gift." Next, Buddha smiled and said, "Yes, dear, you are right, and it is exactly the same with your anger and bad words. If you say bad words to me and I don't feel insulted or I am not angry with you, then anger and bad words fall back on you." The rude man kept listening to him with his wide open mouth. यहाँ पे हमें कुछ आंसर्स मिल रहे हैं हमारे. Buddha continued, "You are the only one who become unhappy because I didn't feel insulted. In this way, you hurt yourself. So, my dear, you should get rid of your anger and stop behaving badly. Love yourself and spread love and happiness." देखो उन्होंने ये कहा कि love yourself and spread love and happiness. मैनकाइंड को जो उन्होंने जो बताना चाह रहे थे वो ये था. तो चलो अब हम आंसर देख लेते हैं फटाफट से. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट डिड द रूड मैन कॉल हिम? कॉल गौतम बुद्धा. क्या कहा था? सो आंसर इज ए, अ फेक पर्सन. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रूड मैन केप्ट लिसनिंग टू हिम विद हिज वाइड ओपन माउथ? इसका मतलब था कि वो बड़ा सरप्राइज होके, हैरान होके वो सुन रहा था. सो ही वाज सरप्राइज विद हिज वर्ड. ऑफ कोर्स डी. नेक्स्ट, what can replace to get rid of? So enhance बढ़ाना होता है, get involved नहीं होता है, get identification नहीं होता. Disburden बोझ हटाना, ठीक है, भार हटा देना, बोझ उतारना. Disburden होता है. तो get rid of का मतलब ये हो सकता है. बिल्कुल. नेक्स्ट हमारे पास है, we have question number 4.
व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ गौतम बुद्धा टू मैनकाइंड? ऊपर के तीनों ऑप्शंस पैसेज में नहीं गिवन है, राइट? सो आंसर रहेगा नन ऑफ दी। नेक्स्ट वी हैव अ पोम, ठीक है। सो उसका आंसर देख लेते हैं, साथ साथ पहले पोम रीड कर लेते हैं। Fred is a very lazy frog who lolls all day upon a log। मतलब लॉस क्या हो गया कि या तो लेटा हुआ है, खड़ा है, बैठा है, लेजीली कुछ नहीं कर रहा है। लॉग मीन्स क्या होता है? ट्री का जो वो एक पार्ट होता है, ट्रंक, ट्री ट्रंक, ओके। ही ऑलवेज manages to shriek doing a single stroke of work. His poor old mother called in vain, come in and help. He doesn't bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें पूछा कि हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब क्या है। सो उधर ध्यान से पढ़ेंगे। He lies there in a silent heap and stay conveniently asleep. As a lady frog hops past, you'd think he would get up at last to go and help her on her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog come by, it doesn't open up one eye। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग था, एक लेजी फ्रॉग के बारे में है ये, राइट? सो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉर्ड ऑल डे अपॉन अ लॉ? देखो मैंने अभी यहाँ पे बताया था, इसका मतलब होता है लेइंग, स्टैंडिंग और सिटिंग लेजीली, ठीक है। सो हमारे पास क्लियर कट है, सिटिंग ऑन लॉग लेजीली डूइंग एनीथिंग, राइट? डूइंग नथिंग, सॉरी, एनीथिंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। What do you understand about Fred to do to be extremely hard of hearing? मतलब सुनने को अनसुना कर देना, करेक्ट? He act as if he hasn't listened, ठीक है। How does Fred behave with Lady Frog? कैसा बिहेव करता है वो बेसिकली वो अवॉइड करता है, हेल्प तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। रिस्पेक्ट वाला भी नहीं है, ऐसे आई नहीं ओपन की तो, राइट? तो ही अवॉइड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ लेजी। देखो लेजी माने आलसी, इनर्ट भी यही मीनिंग रखता है, आइडल भी यही, इनएक्टिव भी यही। सो आंसर हमारा बन गया, दैट मीन डी, ऑल ऑफ दीज, राइट? नेक्स्ट 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद द यूज ऑफ द वर्ड हुप। हुप माने क्या होता है? एक टांग पे उछल कूद करना, मीनिंग सेम एज इफ अ लेडी फ्रॉग हुप पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें उछल कूद से रिलेटेड नहीं है। माई फ्रेंड वॉज इन हरी, ही हुप्ड अप विदाउट नोटिसिंग मी। हुप्ड अप यहाँ पे वो नहीं है कि एक टांग पे उछल के चले गया, ऐसा भी नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं। हाँ, बच्चे जो है जॉय में उछल कूद करते हैं, सो हम इसको कर सकते हैं, टू शो देयर जॉय द किड हुप विद क्लैप। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट इडियम फॉर यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। देखो यहाँ ब्रेक द रॉक तो नहीं है, इसका ब्रेड द रॉक होता है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क नहीं। नो पेन नो गेन, ये हमारा करेक्ट इडियम बनता है इसके लिए, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। ट्रेवलिंग इन द प्लेन इज अ डिम अ डजन these days। A dim a dozen means very common and of no particular value, बहुत ज्यादा कॉमन चीज हो गई है आज के दिनों में। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, what is the meaning of the idiom a couch potato? सी, a couch potato हम कहते हैं for a lazy person, बिल्कुल। बट लेजी पर्सन ज्यादातर इसका एग्जैक्ट क्या होता है? लेजी पर्सन जो बैठा है, राइट, और मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखता रहता है। सो स्लीपिंग पर्सन, सिटिंग पर्सन भी है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, 2 years have passed डैश आई पास क्लास 4। देखिए एग्जैक्ट टाइम बता रहे कि इतने टाइम हो गया हमें क्लास 4 पास किए।
तो सिंस लगता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, यू नो दैट, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, आकाश डिडंट प्रैक्टिस द स्विमिंग, वो प्रैक्टिस ही नहीं की थी उसने स्विमिंग की, ठीक है, डैश ही couldn't win a prize in the competition, तो उसे कोई प्राइज भी नहीं मिला, तो इसके लिए हम लिखें कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप उसे कोई प्राइज नहीं मिला। तो क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही ज्यादा, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कट गया, चलो मैं बोल देती हूँ। आई वॉज नॉट इन दिल्ली डैश आई couldn't attend your party, दिल्ली में नहीं था इसलिए नहीं अटेंड कर पाया, इसलिए के लिए क्या लगाते हैं हम? सो वेरी गुड। नेक्स्ट, सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है। इंडिया इज द लैंड डैश डाइवर्सिटी, ऑफ डाइवर्सिटी होता है, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, राइट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे एज इट इज रेनिंग डैश मॉर्निंग, एग्जैक्ट टाइम कब से बारिश हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग, विद मॉर्निंग नहीं होगा, फॉर मॉर्निंग नहीं होगा, फ्रॉम नहीं, एग्जैक्ट टाइम दे रखा है तो। आइडेंटिफाई द एडवर्ब which tell about the extent of an action, यानी कि डिग्री ऑफ, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी, यप, है ना? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी दिखा रहा है, इनफ भी एंड ओनली भी दिखाता है, क्योंकि जहां पे हम बोलते हैं कि नहीं सिर्फ यही चाहिए, इतना ही हो, है ना, लिमिट बताना होता है, तो वहां पे होता है। तो ऑल ऑफ दीज, हमारा डी हमारा बिल्कुल सही आंसर बनता है इसका। ओके, ये किए हुए हमने जब एडवर्ब कर रहे थे, लिस्ट वर्ड्स की मिली थी आपको, राइट? Identify the adverb in the following sentence. See, my father will go to Agra to buy a car. देखो, my father will go to Agra. Why he is going to Agra? ठीक है, to buy a car. Reason पता लग रहा है? So B is the answer. Next, which of the following is an adverb? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट हमारा एडवर्ब है, अंडरगो है, cheerfully है, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अंडरग्राउंड जो है प्लेस बता रहा है, फर्स्ट कार्डिनल है, चेयरफुली ऑफ कोर्स एडवर्ब है, तो ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट 21, सुटेबल एडवर्ब, वॉक डैश द रोड इज वेरी स्लिपरी, अगर स्लिपरी है तो तेज तो नहीं चलोगे ऑफ कोर्स, वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, द रोड इज वेरी स्लिपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इट वॉज डैश ऑनर फॉर माई डैश फादर टू बी इनवाइटेड, यहाँ भी है, एज डैश चीफ गेस्ट एट डैश एनुअल डे फंक्शन ऑफ डैश स्कूल। सो इसका आंसर हमारे पास देखो सीधा सीधा है, ऑनर के साथ क्या लगता है? एन। माई और फादर के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो ए और एन से ही हमें इतना पता लग जाता है कि हमारा आंसर सी बन रहा है, ठीक है। ओके, इनवाइटेड टू बी इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट एट द एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल। चलिए नेक्स्ट, अगेन सुटेबल आर्टिकल फिल करने को आया हमारे पास। डैश स्वीडन इज डैश यूरोपियन कंट्री, सो स्वीडन इज द नेम ऑफ अ कंट्री, सो यहाँ पे हम आर्टिकल नहीं यूज करते। यूरोपियन य साउंड दे रहा है, य साउंड इज द कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए अ यूरोपियन कंट्री, राइट? नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ सिक्योर, ठीक है, सिक्योर मीन्स सुरक्षित, सो एंटोनियम मीन्स टू से दैट ऑपोजिट, ऑपोजिट हम करेंगे तो अनसर्टन, राइट? नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ लेजर, मतलब लेजर हम कहेंगे कि छुट्टी, आराम का टाइम, तो रिसेस, रिलैक्सेशन, ईज, तीनों इसके सिनोनियम बन रहे हैं, राइट? कहीं ना कहीं इम्प्रिजनमेंट मीन्स होता है कैद, तो ठीक है, ये इसको हम एंटोनियम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट, कि अगर छुट्टी हो तो हम आजाद है, इम्प्रिजनमेंट में कैद है, तो चलो ठीक है, ये हम इसको ऑपोजिट ले सकते हैं। अगर सिनोनियम ऑफ चेज, चेज माने पीछा करना, सिमिलर मीनिंग रखना है तो परस्यू का क्या मतलब रहता है? पीछा करना, ट्रैक करना,
किसी को ऑफकोर्स फॉलो करना हो गया, फॉलो करना तो है ही है। तो यानी कि आंसर हमारा रह गया ऑल ऑफ दिस, डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सिनोनियम ऑफ बॉस्ट्रियस। बॉस्ट्रियस माने होता है पूरा, मतलब शोर शराबा हंगामा करना, राइट। सो एग्जॉर्बेंट हमारा ये हो सकता है सिनोनियम। इवन एनर्जेटिक भी इसका सिनोनियम बनता है बच्चे, ठीक है। एनर्जेटिक भी एग्जॉर्बेंट भी ये इसके सिनोनियम ही है। पता नहीं इन्होंने दो दो सेम डाल दिए हैं, है ना। नेक्स्ट, जंबल वर्ड। जंबल वर्ड हमारे पास है, फर्स्ट वॉज डॉक्टर राजेंद्र, प्रेसिडेंट ऑफ प्रसाद द इंडिया। तो द है डेफिनेट आर्टिकल, स्पेसिफिक नेम के साथ लग सकता है। ओके, द जो है क्या, पहले तो नाउन बनाएंगे, नाउन का नेम हो सकता है बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। सो 28 का आंसर पता लग गया, इज डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। अगेन, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है हमें। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी मैनी स्टोरीज इन चाइल्डहुड, ठीक है। सो पहली बात तो क्या है, टोल्ड, टोल्ड इज वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म चेंज करेंगे पैसिव में, सो क्या हो जाएगा, वॉज वर एंड प्लस थर्ड फॉर्म, राइट, है कि नहीं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक मैनी स्टोरीज है। अगर मैं आई से बनाती हूँ, आई वॉज है यहाँ पे, तो वॉज वर दिया ही नहीं है, हैड दे रखा है, ये नहीं होगा। आई वॉज टोल्ड मैनी स्टोरी, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ चला गया, ठीक है। बाय माई ग्रैंड मदर इन माई चाइल्डहुड, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30। गिव वन वर्ड फॉर द पर्सन हु वर्क्स फॉर द कंट्री। अच्छा, जो कंट्री के लिए काम करे उसे हम देशभक्त कहते हैं, पेट्रियट, राइट। चलिए, देन करेक्ट स्पेलिंग आपने बतानी है। सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कार्बोरेटर इज बी। नेक्स्ट, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्ले राइट, इट्स ए, ठीक है। देन करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, सो 33, यप, ए। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ब। देखो, मॉडिफाई वर्ब है, कस्टम वर्ब है, अकस्टम वर्ब है, एंड कस्टमाइज भी वर्ब है। कस्टम इज रीति रिवाज, ये हमारा नाउन बने, है ना, तो ये वर्ब नहीं है। कंप्लीट द सेंटेंस, देयर डैश नो शॉप ओपन इन द नाइट, इन द नाइट यानी कि पास्ट में, तो शॉप्स है प्लूरल है तो वर, यानी कि ये भी गया और ये भी गया। देयर वर नो शॉप्स ओपन इन द नाइट, दे द ऑल वर क्लोज्ड अप। क्लोज्ड अप, यहाँ पे क्लोज अप का हम देखते हैं, वैसे तो नजदीक होता है क्लोज्ड अप, हम कई जगह पे इसलिए यूज करते हैं शॉप के कंसेप्ट में, जो परमानेंटली नहीं बंद हुए, फॉर अ शॉर्ट टाइम बंद हुए, जब उनका टाइम है नेक्स्ट डे के लिए ओपन हो रहा है, ठीक है। देन 36, रिक्वायर्ड टेंस फिल करना है। ही सीम्ड वेरी टायर्ड, seemed, seemed here is giving us hint, verb second form past, because he dash since morning, यानी कि सुबह से लेके काम चल रहा है, चल रहा था, so he had been working since morning, right, see। Next, question number 37, categorize Mount Everest into a type of noun. Which type of a noun? It's the name of a particular thing, है ना, proper noun। Categorize air into द टाइप ऑफ नाउन। देखो, एयर वैसे तो कॉमन नाउन है, पर कॉमन में भी एज यू नो दैट काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं, है ना। तो हम इसको अगर जाए तो ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि इसमें बहुत गैसेस रहती है, सो ये अनकाउंटेबल रहते हैं एयर हमारा।
देन हमारे पास क्या है, सुटेबल वर्ड फिल करना है जहाँ क्वेश्चन मार्क हो। सो सी, अराइव मीन्स पहुंचना, डिपार्ट वहां से चले जाना, है ना, या कहीं से निकलना, डिपार्ट ऑपोजिट है। सो एनॉय का ऑपोजिट क्या होगा, प्लीज करना किसी, राइट। नेक्स्ट, अफेक्शन एंड अटैचमेंट, दोनों सिनोनियम है, तो ग्लो करेगा तो वो क्या होगा, टाइम। ठीक है, सिनोनियम बन गए। देन करेक्ट पंचुएशन फाइंड करना कि कहाँ पे यूज हुआ है। गुड बाय, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। सो गुड बाय के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, सो बी इज द राइट। गुड बाय, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, कॉमन है बच्चे। Convert the following sentence into the indirect speech. Akanksha said to Pratyush. तो सेट टू अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव है, सो यहाँ आस्क्ड आ जाएगा पहली चीज, तो गया ही फर्स्ट। तो यहाँ प्रत्युष आस्क्ड टू आकांक्षा है, ये भी गया। प्रत्युष वॉज आस्क्ड, नहीं। आकांक्षा आस्क्ड प्रत्युष, डब्ल्यू एच वर्ड है वो एज इट इज रह जाता है। यू सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है प्रत्युष, उसके अकॉर्डिंग ही लगाया। इज एम आर चेंजेस इनटू वाज वर, इंट्रोगेटिव चेंजेस इनटू असर्टिव, ही वाज सो लेट, was late. Complete the sentence again. Akash is an awesome musician. He dashed so well. We need to fill the correct verb here. तो बी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि वो इज प्रेजेंट में है, तो सैंग नहीं लगेगा, ठीक है, संग नहीं लगेगा। कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की फर्स्ट में प्लस आईएनजी अलोन नहीं लगता, वर्ब रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड है, वो नहीं है यहाँ पे। सो बचा क्या, सिंग्स। प्रेजेंट में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो एस सी एस लगता है कि नहीं लगता। सो ही सिंग्स सो वेल, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। डैश पीपल से इट ब्यूटीफुल, तो हैव यू नेवर, नहीं हो, यू नेवर विजिटेड द ताजमहल। हैव यू एवर विजिटेड, कभी भी मैं विजिट किया है ना। हैव यू एवर विजिटेड ताजमहल, डिड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगता भाई, यहाँ पे लगा रखे इन्होंने, नहीं। नेक्स्ट, आई डैश नॉट दैट फिल्म, आई हैव नॉट वॉच्ड दैट फिल्म, मैंने अभी तक नहीं देखी है। सो बी इज द राइट आंसर हियर। Next, question number 46. Last evening, Sharad dashed along the seashore to witness the sunset. So देखो, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लिया जाता है ना। तो ड्राइव नहीं सीशोर पे होगा, क्रॉल रेंगने का तो बिल्कुल भी नहीं, राइड भी करने का नहीं, टहलना स्ट्रोल, ठीक है। लास्ट इवनिंग शरद strolled along the seashore to witness the sunset. माई ब्रदर डैश द मूवी ट्वाइस, मेरा भाई दो बार मूवी देख चुका है। माई ब्रदर सिंगुलर है तो हैज सीन हो जाएगा, हैव नहीं रहेगा। ईशान डैश द बॉल बियॉन्ड बाउंड्री, वो हमेशा कहते हैं बाउंड्री से बाहर ही हिट करता है, तो ईशान थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हिट्स द बॉल बियॉन्ड द बाउंड्री टी, राइट। नेक्स्ट, लास्ट टू क्वेश्चंस। यू डैश गो एंड टॉक टू योर टीचर to learn the grammar lesson properly. सी यहाँ पे ought to and must दोनों लग सकते हैं, अगर कंपल्शन की बात करूँ तो must लग जाएगा, अदरवाइज ये हमें क्या है, सजेशन की जो है सेंस दे रहा है। सो यू ought to go and talk to your teacher to learn the grammar lesson properly, ठीक है। I find science dash math, here we are comparing, इक्वल टू नहीं, easiest than तो बिल्कुल नहीं, as beautiful, beautiful कहाँ से, easier than, बहुत ही easy क्वेश्चन था ये लास्ट। तो खैर इजी, बहुत पूरा का पूरा पेपर ही काफी इजी था। होप आपको समझ आया है। सो प्लीज अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।